Do you suggest using in-clinic treatment during pregnancies? कुछ पील्स होते हैं जो कि डीपर लेवल ऑफ स्किन पे जाता है विच कैन अल्टीमेटली एंटर द सर्कुलेशन, सो दोज आर डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड. In India, approximately 20% of infants, newborns are suffering from eczema. What is this exactly? People just need to remember that eczema is a chronic inflammatory skin condition. डॉक्टर अनुप्रिया, जैसे घर में जितने भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, दे यूजुअली टेंड टू डू अ लॉट ऑफ मसाजेस ऑन बेबी. दे यूज़ मस्टर्ड ऑयल एज वेल. दे हैव देयर फिनोमिना इन देयर ओन माइंड कि इससे मालिश करो तो बच्चा गोरा होता है, इससे मालिश करो तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं. आप क्या सजेस्ट करते हो? ये वाकई में होता है? बच्चे की स्किन कलर को क्या हम लाइट कर सकते हैं? Welcome to the Palan Poshan podcast brought to you by Baby Forest, and in today's episode we will talk about mothers and their little one delicate skin. Today we have an absolute pleasure of hosting Dr. Anupriya Goel. She is an expert in the field of dermatology, a TEDx speaker with over 3 lakh followers on Instagram. Please join me in warmly welcoming Dr. Anupriya Goel. We are thrilled to have you here. It's my pleasure to be here. Thank you so much for accepting our invitation, and we are very excited to start the discussion about same mother and baby all together. Absolutely, and I would love to discuss about this topic because it's something which I haven't discussed too much, so I'm very excited to be here and talk about it. Anupriya, मैंने आपकी जर्नी देखी है, like you know, I've seen you over the Instagram and you explain skins in a very beautiful manner. I mean, अगर हमें क्या use करना है, क्या नहीं भी use करना है, so you have given all your opinions, which has not even inflicted in a way कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, मैं जो बता रही हूँ वो सही है, बट इन अ वे दैट आप ऐसा करोगे तो ये आपकी स्किन इंप्रूव हो जाएगी ये चीज़ करने से. डेफिनेटली. सो देयर इज साइंस बिहाइंड एवरीथिंग दैट वी डू, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड अबाउट how to use skincare which would scientifically help their concerns. So that's my main motto when I talk about anything on any of my social media platforms, that there is a reason behind you should use certain products which would help any specific skin condition. That is why you should know what is happening to your skin, what is happening to your body, and then use the ingredients accordingly. And same thing happens with mother and the child, and that's why I'm really excited to talk here about baby skin and the mother skin. Dr. Anupriya, actually when women is pregnant and when they deliver, about infants also and babies also, skin is really a concern. I would really want to start with a question which is baby eczema, because I recently delivered a baby boy, and within 15-20 days of delivery, we found that his skin is peeling off, it's very dry, and my team has also found out there are in India, approximately 20% of infants, newborns are suffering from eczema. What is this exactly? So, eczema सुन के बहुत ऐसा लगता है कि it's something which is a very serious skin condition, but people just need to remember that eczema is a chronic inflammatory skin condition. And inflammatory skin condition मतलब कि आपका skin barrier थोड़ा सा impair हो जाता है, ठीक है? क्योंकि बेबी की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, एंड जब हमारा स्किन बैरियर इम्पेयर हो जाता है, what we really need to do is we need to repair the skin barrier, and that can be done very easily with good moisturizers, hydrating moisturizers, and then we need to ensure that after using the moisturizer, after repairing the skin barrier, we are creating a film over this barrier by using creams with petrolatum or glycerine or lanolin, and that really helps in improving this condition. Also, see, we need to ensure that हम इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करते हैं. सबसे पहले, आई डोंट वांट एवरीवन टू होम डायग्नोज दीज कंडीशंस, बट स्टिल आई विल टेल यू सम फीचर्स अबाउट इट, दैट जब भी एक बच्चे की फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनके पेरेंट्स में या तो हिस्ट्री ऑफ डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस मतलब एलर्जिक स्किन कंडीशन ज़्यादा होती है, या एलर्जिक राइनाइटिस की कंडीशन होती है, या एस्थमा की हिस्ट्री होती है, तो उन बच्चों के अंदर ये कंडीशन होने की ज़्यादा चांसेस होती हैं. नाउ यूजुअली एक्जिमा यानी एटोपिक डर्मेटाइटिस इन न्यूबॉर्न्स फेस पे होता है या हाथों में हो सकता है, ऑन द एल्बोज या इनर साइड ऑफ द नी, इन सब जगह पे हो सकता है. एंड what we need to ensure is that we need to give a bath to a baby with very warm water. जेंटल क्लेंजिंग करनी है. जब भी हम बेबी बात करें तो उनको जेंटल क्लेंजर्स से हम धोएं. कोई भी हार्श सोप या एडल्ट सोप से ना
उनको नहलाएं. एंड वी हैव टू पैट देम ड्राई वेरी जेंटली. वी हैव टू यूज़ कॉटन क्लोथ्स इन सच कंडीशंस सो दैट उनको कपड़ों की वजह से कोई रैशेज नहीं हो रहे हैं. एंड वी हैव टू इंश्योर दैट वी मॉइस्चराइज देयर स्किन वेरी वेरी वेल, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बेबी की स्किन को ज़्यादा मॉइस्चराइज करेंगे, देयर स्किन विल गेट यूज टू द मॉइस्चराइजर एंड इवेंचुअली देयर स्किन विल गेट ड्राई, विच इज़ अ मिथ. So please ensure to moisturize your baby skin very very well to avoid this condition. Okay, so I didn't know that people are skeptical about using moisturizer. Yeah. So a lot of people, in fact, my grandmothers and my children's grandmother also used to say that, don't you think that if you apply too many moisturizers to your child, it will lead to further dryness of the skin, because the skin will stop producing the natural oils. It is not like that. This baby skin is extremely sensitive, at birth. It is in general atopic, मतलब उनकी टेंडेंसी है ड्राई होने की. तो आपको उनको मॉइस्चराइज करते रहना पड़ेगा ताकि कोई भी एलर्जिक स्किन कंडीशन ना हो. सो एक्जिमा के स्पॉट्स वगैरह पड़ते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपने उनकी स्किन को टाइम पे मॉइस्चराइज नहीं किया और वहाँ पे बच्चे ने बहुत खुजली कर ली, तो थोड़ा सा पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़े से वहाँ पे मेलानोसाइट्स डेवलप हो सकते हैं, जो कि विद टाइम चले जाते हैं. ऐसा नहीं होगा कि वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा पिगमेंटेशन. सो ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है कि अगर बेबी को एक्जिमा हुआ है तो वो ट्रीट नहीं हो सकता? Absolutely not. It's a treatable. Absolutely yes. So do not worry. It is very treatable, and it is very treatable with very easy steps. Yeah. Like you need to hydrate your baby's body. Yes. You need to gently pat dry. Use gentle cleansers. Use warm water, and just ensure to moisturize your baby's skin very very well. That's all. Perfect. Moving on, Dr. Anupriya, baby acnes are also very common. Yes. And we found that 13% of babies, newborn infants, are suffering from these baby acne. How we can treat baby acne as well? So baby acne या neonatal acne, क्योंकि जब बच्चा 6 हफ्ते से कम का होता है तो उसको हम नियोनेटल एक्ने बोलते हैं. एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल टू बी वरिड अबाउट, बिकॉज नियोनेटल एक्ने कभी आपके फोरहेड पे, नोज़ पे, कभी बच्चों के चीक्स पे हो सकता है, और वो छोटे छोटे वाइट दानों की तरह प्रेजेंट करता है. एंड एवरीबडी डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट एट ऑल, बिकॉज ये समझ लीजिए जो आपके बेबी के स्किन के अंदर थोड़ा सा ऑयल प्रोडक्शन ट्रैप हो गया और जिसकी वजह से आपका वो बेबी एक्ने बन रहा है. सो व्हाट वी जस्ट नीड टू डू इज़ कि हमको कोई उसके ऊपर ट्रीटिंग क्रीम भी नहीं लगानी. हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब हमारा बेबी हमारे सामने आया और उसको थोड़ा सा न्यूनेटल एक्ने हो रहा है, इंश्योर टू जस्ट यूज़ जेंटल क्लेंजर्स, वार्म वाटर, पैट ड्राई जेंटली, एंड यूज़ gentle moisturizers which are hydrating the skin and which are not blocking the pores. So इस केस के अंदर आपको thick moisturizing creams नहीं यूज़ करनी, आपको hydrating moisturizing creams यूज़ करनी है जो कि बहुत ही लाइट वेट हो और बच्चों के स्किन में बहुत easily absorb हो जाए. You can even use baby lotions. Okay. Yes. डॉक्टर अनुप्रिया, जब बच्चे born होते हैं and infant होते हैं, so we actually see a lot of very tiny bumps on their heads, and my dermatologist suggested me it's called milia. So these tiny bumps are ये कोई impressions छोड़ते हैं बच्चों के ऊपर, मतलब कोई दाग धब्बे आ जाते हैं या ये अपने आप ही चले जाते हैं? What exactly? So when you see tiny bumps on your baby, now there can be various differential diagnosis of the same कि जब कोई dermatologist देखता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं that it can be a viral infection called molluscum, it can be bacterial infection, it can be various other things. But I don't want to scare anyone, but just to ensure that अगर आपको ऐसे white bumps दिखते हैं तो make sure आप अपने dermatologist या pediatric dermatologist को ज़रूर consult करें to फर्स्ट ऑफ ऑल गेट टू अ डायग्नोसिस कि ये मीलिया है या नहीं है. क्योंकि अगर हम यहाँ पे वाइट येलोइश बम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके और भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं. सो मीलिया अगर है तो मीलिया के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वायरल और अ बैक्टीरियल और अ फंगल इन्फेक्शन. इट इज़ ओनली आपकी बेबी के स्किन के अंदर थोड़े सी प्रोटीन या केराटिन ट्रैप हो जाता है और उसकी वजह से ये मीलिया दिखता है. सो ये मीलिया सिर्फ बेबीज़ ही नहीं, अडल्ट्स में भी दिख सकता है. एंड काफ़ी लोगों में, अडल्ट्स में अंडर आई एरिया के अंदर और चीक्स के अंदर मीलिया दिखता है.
which can be easily treated by using certain creams and by using certain procedures. But babies के केस के अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. Again, you just have to ensure कोई भी आपके हाथ में न्यूनेट है, यानी कि न्यू बॉर्न बच्चा है, लेस देन 1 month old बेबी है, आपको सिर्फ कुछ ही स्टेप्स ध्यान रखने हैं. दैट यू हैव टू गिव देम a gentle bath with gentle cleansers, with warm water, moisturize their skin, and you will see that all these conditions, whether it is baby acne or it is baby melia, it all fades away gradually. ओके. डॉक्टर अनुप्रिया, जैसे घर में जितने भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, दे यूजुअली टेंड टू डू अ लॉट ऑफ मसाजेस ऑन बेबी. दे यूज़ olive oil, they use your sarson ka tel also, mustard oil as well, and they have their phenomena in their own mind कि इससे मालिश करो तो बच्चा गोरा होता है, इससे मालिश करो तो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं. आप क्या सजेस्ट करते हो? ये वाकई में होता है? बच्चे की स्किन कलर को क्या हम लाइट कर सकते हैं? सो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. सो अ लॉट ऑफ मदर्स दे एक्चुअली आस्क दिस क्वेश्चन दैट हाउ डू वी मेक आवर चिल्ड्रंस face fair and can we use certain oils even बच्चों के जैसे ही वो बॉर्न होते हैं, बच्चों के बॉडी पे बाल होते हैं बहुत पतले पतले, which is called as lanugo, and ये प्रोटेक्टिव हेयर होता है. इसको हटाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आटे के रोल बनाते हैं और वो बच्चों के ऊपर मलते हैं ताकि वो बाल हट जाएं. लोई कहते हैं उसको. लोई. एंड इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द चाइल्ड बिकॉज आप समझो लाइक women are waxing. They are taking a wax which sticks to your body and you take out the hair. It is similar for children कि आप वो लोई ले रहे हो और वो बच्चों को के मुंह पे मल रहे हो and you're actually sticking that आटे का roll on their hair and you're taking it off and it's very very painful for the child. Please do not do all this. A child's natural skin color cannot be changed. A child's protective hair eventually falls off over a period of 6 to 12 months. So, और उसके बाद जो उनके दूसरे बाल आते हैं, which is a very natural phenomena for the body. Do not do anything before they turn teenagers. So, ये जो protective hair, especially बच्चों में होता है, वो उन आटे की लोई से या किसी भी चीज़ से नहीं जाता. So, I have had 2 daughters and I have twin daughters. So, ये सब चीज़ें जब मेरे बच्चे भी हुए थे, all my mother, my husband's mother, they all suggested us all these things कि और मेरे बच्चों में दोनों का complexion बहुत different है. So, सबने मुझे बोला कि अच्छा इनको आटे की लोई से इनके बाल हटा देते हैं एंड इनको दूध से नहलाते हैं. सो सी दूध से नहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो वो आपके बच्चे की स्किन को बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करता है. लेकिन ये भी चीज़ जो आपको करनी चाहिए 1 महीने के बाद करनी चाहिए. लेकिन क्या इससे मेरे बच्चों का परमानेंट कलर स्किन कलर चेंज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा. जो भी नेचुरल स्किन कलर है वो वैसे ही रहेगा. एंड आई नेवर एवर गॉट इन टू द प्रैक्टिसेस ऑफ मेकिंग माई चिल्ड्रन गो अंडर द torture of getting waxed with the आटे की लोई. It is something जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. प्लीज़ अपने बच्चों को उस टॉर्चर से बचाएं. आप मॉडर्न women जो है, आज की जो मॉम है, शी इज़ एजुकेटेड, शी अंडरस्टैंड्स अस, बट ट्रस्ट में अनुप्रिया जी, लाइक इफ़ यू गो टू रूरल एरियाज लाइक small towns in UP or small towns in MP, still they follow this regressive Indian culture over Genuinely there. telling you, ये सिर्फ रूरल एरिया की नहीं, ये अर्बन एरियाज में, दिल्ली में, एवरी अदर हाउस होल्ड में होता है. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, इट इज़ ओनली बिकॉज आई एम इन टू दिस प्रोफेशन, आई नो अबाउट द फैक्ट्स एंड दैट इज़ वाई आई डिडंट फॉल प्रे टू दैम. बट मेरे घर में मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो सब ये फॉलो करते हैं. बिल्कुल करते हैं. So it is something which is not just for the rural areas. It is more common in urban areas. So I was trying to say that in in rural areas still they want to practice it, but in urban areas mothers are more educated now. That's they are true. actually improvising their upbringing, like That's they don't want to listen to their, of course they would like to, because our parents anyway, like their experience, their seasoned experienced people, they can tell us about that what kind of upbringing we should always hold for babies. Yes. But sometimes they are not really correct when it comes to skin, when it comes to food. Like the time has been changed. Like उनके टाइम पे दूध बहुत प्योर आता था, हमारे टाइम पे दूध प्योर आता भी नहीं आता है, we don't even know about it.
सो ये एक फैक्ट है। अनुप्रिया जी, एक चीज़ मुझे आपसे और कंफर्म करनी थी। जब हम बच्चे के स्किन की बात कर रहे होते हैं, एक नोशन है लाइक बच्चे की मालिश डे 1 से स्टार्ट कर दी जाती है। हाँ जी। सो बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या एडवाइस करते हो? नहीं, मालिश करना बहुत अच्छा है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन। सो अगर आप मालिश करते हैं अपने बच्चे की, चाहे आप कोई भी किस्म का तेल लें, मैं रेकमेंड करूँगी दैट ट्राई एंड यूज़ अ वर्जिन कोकोनट ऑयल विच इज़ इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। सो आप अगर मालिश करते हैं बच्चे की इन द फॉर्म ऑफ कि आप पेट पे मालिश कर रहे हैं या हाथ पे मालिश कर रहे हैं या लेग्स पे मालिश कर रहे हैं, बिकॉज द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू वॉक until a certain age, that is the only form of exercise that you're giving to your child. So till your child starts crawling or walking, मालिश बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। ये हर रोज़ करनी चाहिए आपको अपने बच्चों के लिए। सो मालिश से मतलब एज अ डॉक्टर आप रिकमेंड इसलिए भी कर रहे हो बिकॉज इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। यस, उससे उनकी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। उनकी हड्डियों का मैं नहीं बोल सकती कि स्ट्रॉन्ग होंगी बिकॉज दैट रिक्वायर्स समथिंग एल्स, बट उनकी मसल्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होती हैं। डॉक्टर अनुप्रिया, जो बेबी फार्मूला फीड पे होते हैं, मतलब they are not getting mom's milk because of XYZ reason and they are actually fed by formula, तो क्या उनकी हड्डियाँ जॉइंट्स मजबूत होते हैं? बिकॉज समहाउ वी बिलीव दैट अगर मिल्क मदर का बच्चे लेते हैं तो उनकी मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। देखिए, डेफिनेटली मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मिल्क दैट कैन बी गिवन टू अ चाइल्ड। A pediatrician would be able to give the answer to this question in the best form, but I'll tell you with my own experience that आजकल जो fortified formulas आ गए हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं। So हम ये सोचें कि fortified formula से बच्चों की हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बट आई वुड ऑल्सो से दैट मदर्स मिल्क की अपनी एक जगह है, क्योंकि उससे बच्चों को सिर्फ इम्यूनिटी बेटर नहीं मिलती, बिकॉज देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स विच आर देयर इन मदर्स मिल्क। बट जब वो ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हैं, उनके गम्स भी मजबूत होते हैं, उनका पावर ऑफ सकिंग की वजह से देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट द चाइल्ड गेट्स। सो देर इज़ नो रिप्लेसमेंट टू मदर्स मिल्क, बट डेफिनेटली अगर बिकॉज ऑफ सम रीज़न, अब जैसे मेरे ट्विन बच्चे थे, मैं अपने दोनों बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे सकती थी। ऐसा नहीं है कि उनकी ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम आई। देयर we did give them fortified formula and they are all very good quality fortified formulas. Please consult your pediatrician before deciding on one, but they are very good these days. Like hives are very common in India and it is affecting almost 20% of newborns and babies. Can you please tell us more about what hives are and is it treatable or not? Yeah, so hives एक allergic reaction होती है। Now allergic reaction आपने सुना होगा, बहुत बच्चों को पीनट्स खाने से हो जाती है, काफ़ी अडल्ट्स को भी हो जाती है, मूंगफली खाने से या प्रॉन से allergic reaction हो सकती है या फिश से हो सकती है। ये बहुत कॉमन खाने के आइटम है। और भी बहुत चीज़ों से किसी को हो सकती है। कोई मेडिकेशन किसी को सूट नहीं करती जिससे वो बोलते हैं कि मेरे को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। सिमिलर चीज़ बच्चों में भी हो सकती है। इट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू मस्कीटो बाइट। जैसे आपको अगर कोई मस्कीटो काटता है तो आप देखते हैं कि एक सूजन सी आ जाती है, इर्रेगुलर सी स्वेलिंग आ जाती है, रेड बम्प्स आ जाते हैं। हाँ, सो वैसी ही एलर्जिक रिएक्शन को हम हाइव्स कहते हैं एंड इट इज़ इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ नोन एज अर्टिकेरिया। एंड इनको ठीक करने के लिए हमें अगर ये बहुत ही अपने माइल्ड फॉर्म में हैं तो हमें सबसे पहले तो कॉज इसका पता करना है कि किस वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो रही है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी फूड आइटम, बिकॉज ऑफ मेडिकेशन, इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ वेरी टाइट क्लोथिंग, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अडल्ट्स में ज़्यादा होता है, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू पोलन या बिल्ली के बाल, उसको डैंडर बोलते हैं, कैट डैंडर, उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एक्सटेंसिव कोल्ड और हीट, इस वजह से भी हो सकता है। सो इन रीजंस को पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस वजह से हमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, उस रीज़न को रोक के, और आपको अगर वो लीजन को ठीक करना है, देर आर कैलामाइन लोशंस, जस्ट इंश्योर टू अप्लाई कैलामाइन लोशन। देर आर माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम्स ऑल्सो विच डर्माटोलॉजिस्ट विल प्रिस्क्राइब दैट यू शुड यूज़ दीज माइल्ड स्टेरॉइड क्रीम्स टू रिड्यूस दैट हाइव। एंड you can also use a cold pack to immediately reduce the inflammation and swelling अगर आपके पास और कोई चीज़ नहीं है। एंड बस आपको इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि ये एलर्जिक रिएक्शन सिर्फ हाइव्स तक ही रहें। हिंदी में इनको चिकत्ते कहते हैं हम, कि चिकत्ते से बन जाते हैं, उतना ही रहे। कहीं बच्चे के फेस पे ओवर स्वेलिंग ना आ जाए, उनको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या swallowing डिफ़िकल्टी ना हो, बिकॉज
अगर वो कॉम्प्लिकेशन होती है देन वी हैव टू टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. चिकन पॉक्स कैसे होते हैं? चिकन पॉक्स इज अ वायरल इन्फेक्शन. It is caused by an organism called Varicella zoster. And अगर बच्चों को चिकन पॉक्स होता है, it can lead to certain lesions on the abdomen, on the face, and it has its own duration. So अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है, हमें एक because it is a viral infection, we have to wait for a few weeks for the child to get fine, क्योंकि उसके जो लीजन्स हैं वो पहले आपके बढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसमें क्रस्टिंग होती है, फिर वो फॉल ऑफ होते हैं. तो अगर आपके स्पेशली फैमिली में कोई और बच्चा है, आपको इंश्योर करना है दैट दे डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद देम वाइल दे आर इन देयर इन्फेक्टिव फेज. दैट इज़ फॉर अबाउट 10 to 14 days. ओके, इट इज़ हाईली स्प्रेडेबल. एंड उसके बाद उन लीजन्स को ठीक करने के लिए you can talk to your dermatologist, because that will require certain creams to get rid of the dark spots. And in case वहाँ पे कोई स्किन पे गड्ढे बन जाएं, यूजुअली बच्चों में वो बहुत जल्दी ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन इन केस वो बन जाएं तो देर आर ऑल्सो ट्रीटमेंट्स फॉर देम, बट आई वुड रेकमेंड देम टू बी टेकन बाय अ चाइल्ड ओनली आफ्टर दे टर्न टीनेजर्स, नॉट बिफोर दैट. ओके, अनुप्रिया जी, ये फैक्ट है या मिथ है? People, they do have this phenomena in their own mind कि once in a lifetime ज़िंदगी में उनको एक बार चिकन पॉक्स ज़रूर होगा. Is this true? See, it is not 100% true, but मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि जिनको चिकन पॉक्स बचपन में नहीं होता, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं of getting an infection called herpes zoster in their adulthood, which is rather more painful. Oh. Yeah, so अगर See, it's not necessary that everybody will get chicken pox in their life, but अगर किसी को बचपन में चिकन पॉक्स होता है तो उनके बॉडी में certain antibodies develop हो जाती हैं which fights against this herpes zoster infection which is there in adulthood. So it is a blessing in disguise, because herpes zoster जब adulthood में होता है, that is a very painful condition. But अब आजकल के ज़माने में चिकन पॉक्स की इंसिडेंस काफ़ी कम हो गई है एज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन्स. बट हम जब बच्चे थे तब उसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन वर हायर, बट नाउ इट्स हार्डली देयर. आपको हुआ है चिकन पॉक्स? हाँ, मुझे हुआ है. जब मैं बचपन में आई was 3.5 years old when I got chicken pox. Yeah, similarly, I think I was 4.5 when I got the chicken pox. But now the vaccines are available for our children, which is safe. Yes. I think they are not going to have this particular, because it is actually terrible when you look at your face at the mirror and itching is most prominent. Yes. Moving on, Dr. Anupriya, बच्चों को itching होती है? हाँ, बच्चों को itching हो ही सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. इट इज़ वेरी फ्रेजाइल. दे आर मोर प्रोन, देयर स्किन इज is more has more tendency to be atopic. Atopic मतलब has more tendency to become dry. So इसलिए हमें उनको मॉइस्चराइज करके रखना ज़रूरी होता है, ताकि उनकी स्किन में कोई भी इचिंग वाले कंडीशंस ना हों. देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एक मिथ रहती है कि हमें अपने बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा था, हमें अपने बच्चों को मॉइस्चराइज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, और नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू शुड मेक योर चाइल्ड ईदर बेद, और स्पॉन्ज बेदिंग तो होनी ही चाहिए आपके बच्चे की एवरी डे, एंड बेदिंग भी एवरी 2 days करिए विद जेंटल क्लेंजर्स, वार्म वाटर, पैड ड्राई जेंटली. बिकॉज सी क्या होता है कि जब हमारे बच्चों को, स्पेशली आजकल हम क्योंकि डाइपर्स भी पहनाते हैं, वो मिल्क का फीड भी लेते हैं, तो जो फूड आइटम्स हैं वो उनके मुंह के आसपास जमा हो सकते हैं. उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है. बच्चों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उनके जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे कभी कभी कोई क्रीम अक्यूमुलेट हो सकती है, कोई स्वेट अक्यूमुलेट हो सकता है, उसको हमें क्लीन करना चाहिए. बच्चों के सर पे जो बाल आते हैं वहाँ पे
अगर क्लीन अच्छे से ना किया जाए तो वहाँ पे चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन, या उसको हम क्रेडल कैप बोलते हैं इन मेडिकल टर्म्स, वो भी हो सकता है। तो उसको हमें अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। एंड जहाँ पे हम डाइपर पहनाते हैं वहाँ पे अगर कोई भी स्टूल के पार्टिकल्स, यूरिन वहाँ पे अक्यूमुलेटेड रह जाए, उसको हमें ढंग से क्लीन करना चाहिए। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द हाइजीन ऑफ आवर बेबी वेरी वेरी वेल एंड इंश्योर कि हम बच्चे की स्किन के बैरियर को रिपेयर्ड करके रखें। डॉक्टर अनुप्रिया, डायपर रैशेस बहुत कॉमन हैं बेबीज़ में। इनफैक्ट मैंने पर्सनली फील किया है, डायपर रैशेस छोटे छोटे बम्स आ जाते हैं आपके बेबी के बम वाले एरिया पे, एंड वो बहुत पेनफुल लगते हैं बिकॉज दोज आर रेड इन कलर। सो क्या ये एक डायपर की वजह से होते हैं कि डायपर आप अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हो, या ये स्किन कंडीशन होती है? देखिए, डायपर रैश के अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो एक कारण है डायपर रैश डेवलप होने का, कि आपके बच्चे की स्किन कंटिन्यूसली मॉइस्ट रह रही है, एंड बिकॉज इट इज़ बीइंग ब्लॉक्ड बाय अ डायपर, जहाँ पे बच्चा यूरिन कर रहा है और वो डायपर उतनी जल्दी सोकिंग कैपेसिटी उसकी नहीं होती है, तो वो हल्का गीला रहता है। एक हल्का गीला कपड़ा हमेशा बच्चे के बम पे रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस डेवलप होगी, थोड़ा सा स्किन बैरियर डिसरप्ट होगा बच्चे का। एंड उसको ठीक करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप ये कर सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा डायपर फ्री टाइम दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एटलीस्ट 2 hours ऑफ डायपर फ्री टाइम टू द बेबी एंड इंश्योर दैट द इंटायर area where you're putting the diaper is completely dry. You pat it dry with a gentle cotton cloth and पॉसिबल हो तो थोड़ी सी उधर जिंक की क्रीम्स भी लगाएं, जो कि आपके बच्चे का जहाँ पे भी थोड़ा सा भी बैरियर डिसरप्ट हुआ है उसको हील कर सके। इवन लैनोलिन क्रीम्स, पेट्रोलियम जेली इज़ ऑल्सो फाइन। वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि बच्चे का एरिया के जो बैरियर डिसरप्ट हुआ है वो हम हील करें। नाउ सेकेंड होता है कि अगर वहाँ पे डायपर बहुत टाइम तक हम बच्चे को पहना के रखें एंड बिकॉज ऑफ द स्टूल पार्टिकल्स कभी डायपर के अंदर आ गए, यूरिन पार्टिकल्स, और वो आपको समझ नहीं आया कि बच्चे ने स्टूल पास कर दिया या यूरिन पास कर दिया, एंड इट इज़ इन कॉन्टैक्ट with the child's skin for a long period of time, that can lead to fungal infections, and a fungal infection with candida is very common. So उसके लिए dermatologist को एक एंटी फंगल क्रीम देनी पड़ती है, जिससे वहाँ पे जो रेडनेस है, और इन केस ऑफ अ फंगल इन्फेक्शन आप देखेंगे कि बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे सैटेलाइट लीजन्स या सर्कुलर पैचेस भी फॉर्म हो जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए फिर हमें एंटी फंगल्स देने पड़ते हैं। बट अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन नहीं है, डायपर रैश कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली बाय जिंक, पेट्रोलैटम और लैनोलिन क्रीम्स। ओके डॉक्टर अनुप्रिया, जब बेबी को हम मसाज करते हैं तो ड्यूरिंग द मसाज जब हम उनको रिग्रेसिवली मोशंस दे रहे हैं उनके हैंड्स पे, उनके लेग्स पे, सो आई हैव पर्सनली सीन उनके बेबी की स्किन के डिस्कलरेशन होने लगता है, मतलब रेडनेस ज़्यादा आ जाती है, एंड मसाज करने के बाद भी आप देखो उनकी पूरी बॉडी रेड रहती है। ऐसा क्यों होता है? That is just because you're increasing the circulation. See, when you're giving a massage to your child, you're also pressing the blood vessels. You're any kind of massage. जब हम किसी को बोलते हैं कि आप हेड मसाज भी कर रहे हो तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि आपके बेबी का स्किन कलर उसके अंदर थोड़ा सा रेडिश दिखता है, बट दैट इज ओनली फॉर सम टाइम। इट विल सेटल डाउन विद इन 20। नॉट एट ऑल। नॉट इफ you have to be obviously be careful gentle, yeah. And not press the baby so much that the baby starts crying, because ultimately even the babies enjoy that massage. Yeah. If the baby is crying when you're massaging, that means you're not being gentle enough. So whenever you massage a baby, just ensure that your baby is enjoying it. That's very important. Yeah, and it also creates a bond between mother and baby also. Yes. It's a very lovely feeling. Absolutely. Moving on, we have found approximately 50% of newborn and babies, they have a disease called Mongolian patches. Is it a disease? What is Mongolian patch, if you can explain? So it is not at all a disease. First of all, Mongolian patch is just a birthmark which can be there, especially in Indian babies. Why? Because Mongolian spot होता क्या है? It is that आपके जो मेलानोसाइट्स या पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो कहीं पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा सा डार्क कलर का पैच बन गया है। एंड ये यूजुअली
बटक्स या लोअर बैक में होता है बच्चों के। नाउ जो इंडियन बेबीज़ हैं स्पेशली जिनकी थोड़ी सी डार्कर कॉम्प्लेक्शन है, हम उसको फिट्जपैट्रिक स्केल में 3 to 5 स्किन टाइप बोलते हैं। जो भी इन स्किन टाइप्स में फॉल करते हैं उनके अंदर ये टाइप के मंगोलियन स्पॉट्स या बर्थ मार्क्स होना ज़्यादा कॉमन है। नाउ दिस इज़ very worrisome for a lot of people because this is a huge birthmark and ये bluish brownish कलर का होता है and ये दिखने में बहुत pleasant नहीं होता। तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है बच्चे को और ये अगर हो गया है तो बच्चा लकी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, गिव इट टाइम for up to 4 years and it will slowly and steadily completely vanish. Only if it persists after 5 years of age, you should consult a doctor. Otherwise, it is not at all required. It doesn't require any cream. It doesn't require anything. It is only because बच्चा एक certain position में है आपकी body में, वहाँ पे melanocytic activity उस area के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है and वहाँ पे एक patch develop हो गया है। जैसे आपने बोला कि ये myth होता है, correct me if I'm wrong, most of the people इसको एक डिजीज़ की जगह इसको एक गुड लक भी मानते हैं। एंड इज़ इट हेरिडिटी ऑल्सो? बिकॉज आई हैव सीन पर्सनली लाइक मैंने अपने घर में ही देखा है कि उसकी मदर के जहाँ पे बर्थ मार्क है, बेबी के भी वहीं पे बर्थ मार्क आया है। सो ये कोइंसिडेंस है और दिस इज़ हेरिडिटरी? सो मंगोलियन स्पॉट्स आर नॉट हेरिडिटरी, ठीक है, लेकिन दूसरे टाइप के बर्थ मार्क्स हो सकता है कि जहाँ पे मदर को है वहाँ पे बच्चे को आ गया हो, लेकिन मंगोलियन स्पॉट्स आर नॉट हेरिडिटरी। सो मंगोलियन स्पॉट्स एंड बर्थ मार्क, देयर आर टू डिफरेंट so birthmarks can be various types. Birthmarks can be because of increased melanocytic activity, जैसे हमारा मंगोलियन स्पॉट है, और भी बहुत सारे टाइप के बर्थमार्क्स होते हैं। कैफिलोमैक्यूल्स भी होते हैं कुछ, बिकॉज ऑफ वैस्कुलर एक्टिविटी भी होते हैं, जैसे हिमैंजियोमा होते हैं। कुछ दूसरे टाइप के बर्थमार्क्स होते हैं जिनको हम एंजल किसेस एंड स्टोक बाइट्स कहते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ बर्थमार्क्स कैन बी देयर। कोई फेस पे बर्थमार्क भी आता है, कोई बैक पे आता है, कोई बैक ऑफ द नेक पे आता है। ये सब धीरे धीरे आपके रिजॉल्व हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर इन बर्थमार्क्स में कोई चेंजेस दिखें आपको कि वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, या वहाँ पे उसका साइज़ बढ़ गया है, या वहाँ पे इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जितने भी ये जैसे भी मोल्स आते हैं बेबी पे, लाइक वी फाइंड अ लॉट ऑफ मोल्स एंड दीज बर्थ मार्क्स ऑन बेबीज, some people like it, some people doesn't like it. So is there is any way we can cure it or remove it from babies, or we can't do it anything about it? सबसे पहले क्या हम मोल्स को रोक सकते हैं? नहीं, हम नहीं रोक सकते। मोल्स को क्या रोक सकते? नहीं रोक सकते। ये भी सिंपल एक ये होता है कि मोल्स यूजुअली उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनका स्किन टाइप फिट्जपैट्रिक 3 to 5 के बीच में होता है, यानी कि जिनका थोड़ा सा डार्कर कॉम्प्लेक्शन होता है, इसलिए हमें इंडियंस में मोल ज़्यादा दिखते हैं। हमारा ऑलरेडी बेसलाइन मेलानोसिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होता है, मतलब हमारे यहाँ पे स्किन में मेलानोसाइट्स या पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं। नाउ इस केस के अंदर जब एक क्लस्टर में मेलानोसाइट्स जमा हो गए हैं या पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स जमा हो गए हैं, तो वहाँ पे एक मोल डेवलप हो जाता है। तो इसको क्या आप रोक सकते हो? नहीं। क्या इसको हम ट्रीट कर सकते हैं? येस, आफ्टर अ सर्टेन एज हम क्लिनिक में ट्रीटमेंट्स होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी, जिसके थ्रू हम मोल्स को हटा सकते हैं। बट इट इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस बाय पीपल। सम पीपल लाइक देयर मोल्स, सम पीपल डोंट लाइक देयर मोल्स। जब लॉट ऑफ पीपल कॉल देम ब्यूटी स्पॉट्स, लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक देम एट ऑल। सो it is a very personal choice whether you want to keep those moles or you want to remove them. Okay, moles again are treatable है, as you mentioned, yes, after a certain age, but there are spots called जिनको आप मस्सा बोलते हो, वो शायद treatable होता है या नहीं होता है? मस्से को भी हम हटा सकते हैं with the help of radio frequency cautery. Okay. It can also be अगर कोई बहुत बड़ा मस्सा होता है तो उसको सर्जिकली देन रिमूव किया जाता है, जहाँ पे हमें स्टिचेस की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बट यूजुअली मस्से अगर छोटे होते हैं, दे कैन बी ट्रीटेड बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी। डॉक्टर अनुप्रिया, फंगल इन्फेक्शन बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है एंड उनकी वजह से उनको फीवर भी आता है, दे एक्चुअली टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ जॉइंडिस, और बैक्टीरिया के थ्रू मलेरिया भी हो सकता है। सो फंगल इन्फेक्शन हम कैसे रोक सकते हैं बच्चों में? जैसे आपने कहा, फंगल इन्फेक्शन सेपरेट है, मलेरिया सेपरेट है, एंड
there are various other separate conditions. Now, I'll just talk about fungal infections. इन चिल्ड्रन फंगल इन्फेक्शन 2-3 जगह कॉमन है जहाँ पे ध्यान देना चाहिए. सबसे पहले स्कैल्प पे, वहाँ पे बच्चों में टीनिया का फंगल इन्फेक्शन कॉमन है जिसको हम टीनिया कैपिटिस या हम क्रेडल कैप कहते हैं. फंगल आपके क्रेडल कैप में फंगल इन्फेक्शन के थ्रू होता है? यस. एंड व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज हमारे बच्चों के स्कैल्प पे अगर हम ठीक से उसको वॉश ना करें, so there can be entrapment of oil and that oil can be food for the fungi. Okay? And उसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चे की स्कैल्प पे काफ़ी बार येलोविश कलर का छोटा सा कैप सा बन जाता है. एंड इसको ठीक करने के लिए वी कैन जस्ट यूज़ शैम्पूज विच हैव जिंक पायरिथियोन, पायरेक्टोनोलोमीन. इवन अगर बहुत सिवियर कंडीशन होती है तो हम सैलिसिलिक एसिड containing shampoos देते हैं. Otherwise, milder shampoos with zinc pyrithione and pyrectonolamine suffice. It is easily treatable. You just have to ensure, और इसको हम prevent कैसे कर सकते हैं? By ensuring to give your child a bath on the scalp at least 2 to 3 times a week. Now, other areas where fungal infection can happen is the buttocks area due to diapers. So, अगर वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो, दैट इज़ ऑल्सो ट्रीटेबल. हाउ डू यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाइजीन, इंश्योर टू गिव डाइपर फ्री टाइम टू योर चाइल्ड एंड कीप चेकिंग द डाइपर एवरी हाफ एन आवर सो दैट इंट्रैपमेंट ऑफ फीसेस ना हो, क्योंकि अगर इंट्रैपमेंट ऑफ स्टूल हो जाता है तो उसकी वजह से चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन बिकम हायर. अदर एरियाज which can be more prone to fungal infection are the folds of a child. So underarm हो गया, thighs हो गया, देन नेक फोल्ड्स हो गया. उन सब एरियाज़ को आप अच्छे से क्लीन करें एंड इंश्योर करें कि वहाँ पे कोई भी स्वेट या अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ना हो. एंड अगर आप वो करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे. अनदर एरिया विच कैन बी इज़ एरिया अराउंड द माउथ, बिकॉज वहाँ पे जब बच्चे के दांत आने वाले होते हैं एंड दे ड्रूल अ लॉट, और व्हेन दे आर ड्रिंकिंग मिल्क एंड दैट मिल्क kind of flows away down their mouth, there the barrier of the skin, it becomes impaired, which can be more prone to fungal or bacterial infection. So ये 4-5 जगह आपको ध्यान रखनी है while the baby is growing. Otherwise there is no chance. And hygiene पे ध्यान रख के बच्चे का, उसी में ही आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने बच्चे के एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. जैसा आपने बोला कि अराउंड द माउथ बेबीज़ को फंगल इन्फेक्शन हो सकता है. सो आई पर्सनली हैव ऑल्सो एनकाउंटर्ड लाइक व्हेन माय बेबी लाइक he completes and finish his milk, बहुत सारे rashes से यहाँ पे आ जाते हैं. when we actually use a lot of water wipes also, we clean it most of the times, but sometimes what happened, दूध रह गया है तो वो clean नहीं हो पाया काफ़ी टाइम तक, तो वो छोटे छोटे ड्रूल्स से आने लगते हैं. मतलब ड्रूल्स तो निकल रहा है, उसको छोटे छोटे पम्प से आने लगते हैं. आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली. सो ये अभी जैसे आप बता रहे हैं कि उसको छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, दैट इज़ नॉट फंगल इन्फेक्शन. ओके, दैट इज़ ओनली अ ड्रूल रैश. सो जब बच्चे की टीदिंग हो रही होती है, बच्चा ज़्यादा ड्रूल करता है, उसका सलाइवा जब उसके माउथ के अराउंड अक्यूमुलेट हो जाता है, दैट कैन इम्पेयर द स्किन बैरियर. और काफ़ी बार ये होता है कि जब उनका दूध भी गिर रहा है और ड्रूल भी गिर रहा है, तो हम लोग कभी कभी किसी मोटे टॉवल से जो सॉफ्ट नहीं होता उसको पोंछते रहते हैं. तो जब हम उसको बहुत मल्टीपल टाइम्स पोंछते हैं तो उसकी वजह से भी वहाँ पे जो स्किन बैरियर है वो इम्पेयर हो जाता है. तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, दैट मेक श्योर दैट यू, सो वाटर वाइप्स इज़ अ गुड आइडिया, क्योंकि वो सॉफ्ट भी होते हैं एंड दे ऑल्सो do not contain any perfume or any other ingredient which can further irritate the skin. So you can use water wipes, you can use a dry cotton cloth, और ensure कि उस एरिया को आप moisturized रखें एंड बहुत ज़्यादा उसको किसी भी टॉवल से या किसी मोटे कपड़े से बार बार फोर्सफुली ना वाइप करें, विच कैन रियली इम्पेयर द बैरियर. In winters, some parents are very skeptical, like giving baths to their babies. However, in North India ये condition ज़्यादा होता है, South वगैरह में तो आती ही नहीं इतनी ठंड. But as a dermatologist and as a doctor, do you advise parents not to give bath to their babies in winter? सो देखिए क्या होता है कि ये एक पर्सनल लाइकिंग होती है कि हमें अपने बच्चे को हर रोज़ नहलाना है या नहीं नहलाना, क्योंकि हर रोज़ नहलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हर रोज़ अगर आप नहलाते हैं जेंटली वार्म वाटर से, विदाउट यूजिंग हार्श सोप्स, यू आर टेकिंग केयर ऑफ द हाइजीन ऑफ द बॉडी.
लेकिन क्या अगर आप हर रोज़ नहीं नहलाएंगे और हफ्ते में 3 बार नहलाएंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम है? नहीं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, स्पेशली इन विंटर्स व्हेन द स्वेटिंग इज़ लेस एज कम्पेयर टू इन समर्स। लेकिन उस केस में भी इंश्योर करिए कि बच्चे कपड़े अपने हर रोज़ ज़रूर चेंज करें। सो हाइजीन हैज़ टू बी मेंटेन्ड। इंश्योर करें कि कॉटन पैंटीज़ यूज़ करें, कॉटन के वेस्ट्स यूज़ करें, ताकि अगर कुछ स्वेटिंग आ भी रही है तो वो अच्छे से सोक कर सके। एंड इंश्योर कि थोड़ा सा गीले कपड़े से साफ़ तो कर लें एटलीस्ट द फोल्ड्स, द अंडर आर्म्स, द थाइज, द बटक्स, the neck, the mouth, all of these things should be cleaned at least with a wet cloth. But daily taking bath is not a problem at all. Totally agree. I mean, hygiene is just not only required for adults, but Yes, also for babies. also for children. Yeah. Moving on, Dr. Anupriya, हम babies के बारे में इतना discussion कर रहे हैं कि उनकी skin को हम कैसे healthy रख सकें. You have given so many advices to us, like उनको proper hygiene देनी चाहिए, उनको proper products use करने चाहिए उनके ऊपर, हमें एक routine बनाना चाहिए bathing का उनके लिए. So you have given the entire 101 sessions to us. जब हम mother की बात करते हैं, like so when a woman is about to get pregnant, she actually encountered a lot of changes in her body. She feels that her bloating has been increased, उसका skin stretch होने लगता है, skin पे बहुत ज़्यादा rashes आने लगते हैं, मैंने छोटे छोटे मसों की बात करी थी वो भी आने लगते हैं. Why this happens? देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे हार्मोनल चेंजेस दे आर एट देयर पीक. There is increase in estrogen, there is increase in progesterone, there is increase in circulation. Our weight is increasing because there are baby. I mean, I had 2 babies, but usually people have singleton pregnancy, so they have a baby inside them, and they have to feed their baby, so they have to eat nutritional food, which also leads to increase in weight. So there are a lot of changes happening in their body. Now, कुछ तो benefits भी होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए और काफ़ी मदर्स के लिए बहुत वरीसम होती हैं. सो अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि हमारे बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से और इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, प्लस इंक्रीज ऑफ सप्लीमेंट्स जो हम आयरन एंड फॉलिक एसिड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी खाते हैं, उसकी वजह से हमारे बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज हो जाता है. That is the anagen phase increases, and that is why a lot of pregnant women experience that they've got very nice thick hair during the pregnancy. Now, जो डाउनफॉल हो सकता है वो ये होता है कि हमारी स्किन क्योंकि इतनी जल्दी से स्ट्रेच हो रही है एंड वी आर गेनिंग वेट, देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ स्ट्रेच मार्क्स एंड आवर स्किन ऑल्सो टेंड्स टू गेट अ लिटिल लूज. ओके, नाउ हाउ डू यू प्रिवेंट दिस? It's very, very important that you moisturize your skin very well, especially of the abdomen, because आप समझ लो कि आप एक बलून में हवा भर रहे हो. जब आप हवा भर रहे हो उसकी इलास्टिक कंटेंट की वजह से वो फूलता जा रहा है, लेकिन जैसे आप उसमें से हवा निकालोगे वो एकदम से श्रिंक बैक होता है और आप देखते हो कि क्रिंकल्स से डेवलप हो जाते हैं और वो लूज़ हो जाता है. सिमिलरली आपकी स्किन के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है आपकी स्किन स्ट्रेच होती है एंड बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी दैट इज़ देयर इन योर स्किन इट इज़ एबल टू टेक दैट, बट जैसे ही आपका बच्चा बाहर आता है दैट स्किन बिकम्स वेरी लूज. सो what you have to do is you have to support that elastin and collagen in your body by moisturizing the skin very well and use ingredients like normal coconut oil is also fine if you don't have access to anything else, but ingredients like shea butter, cocoa butter, hyaluronic acid in your creams, peptides in your creams, they work very well. Orally आपको प्रोटीन डेफिनेटली ज़्यादा खाना चाहिए because that not just supports your health, your child's health, but also supports the collagen and elastin in your body. एंड आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप ज़्यादा अपने एरियाज़ को इच ना करें, खुजली ना करें, बिकॉज दैट ऑल्सो impairs your own skin barrier and that can injure the elastin of your body. So ensure कि आप अपने बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज रखें, ज़्यादा इचिंग ना करें, control that urge and just ensure to enjoy that phase and have a healthy meal. Very, very important to not get into the cravings of increased amount of sugar. खाइए, enjoy करें, but don't get into increased amount of sugar intake. Eat more of protein. That's more important. Very, very important. As you were mentioning, जैसे हमारी बॉडी में during pregnancy estrogens, progesterone
बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगते हैं, उनकी वजह से हमारे हेयर क्वालिटी अच्छी हो जाती है, स्किन भी इफ़ेक्ट करता है उनकी वजह से। आप फेस करते हो, लाइक आई पर्सनली फेस्ड, मेरी जो स्किन थी वो फॉर सम पॉइंट ऑफ अ टाइम तक थोड़ी सी ग्लो कर रही थी, 9 मंथ्स के आते आते थोड़ी सी डल होने लगी थी। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डल एंड ग्लोइंग स्किन इन प्रेगनेंसी? सो एवरीथिंग इज़ बिहाइंड द सर्ज ऑफ हॉर्मोन्स। सो जैसे ही हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ होता है, हमारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं स्किन के अंदर। एक तो हमारा सीबम प्रोडक्शन भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, हमारा मॉइस्चर कंटेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, एंड सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी फ्लश या प्रेगनेंसी ग्लो इज़ वेरी कॉमन, एंड दैट लीड्स टू बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑयल प्रोडक्शन ऑन आवर फेस एंड entrapment of the moisture in our skin, increase in the blood flow to our skin. And कुछ लोगों के अंदर however जब end of the pregnancy आ रही होती है और जब estrogen progesterone levels fall ही होने वाले होते हैं तो थोड़ा सा dry skin भी हो सकता है. And some people also experience acne during pregnancy. And I've seen that this is because of excessive oil production and entrapment of oil within the pores, which can cause acne. But incidence of acne is rather lower as compared to increase in circulation and increase in glow of the skin. However, both of the things can happen. अब acne in pregnancy अगर in case होता है, a lot of people feel that नहीं pregnancy के टाइम पे तो हमें कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाना है, हमारे बच्चे को कुछ ना हो तो हमें कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करनी. बट प्लीज़ आई वुड रेकमेंड कि ड्यूरिंग दीज 9 months यू शुड enjoy this phase and not get so stressed about the acne on your face. Please come to a dermatologist. There are various ingredients which are pregnancy safe which can treat your acne. परफेक्ट. सो जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो अबाउट ऑल दिस कि एक्ने हो जाता है या नहीं, इचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लाइक इज देयर इज एनी वे वेयर वी कैन ट्रीट दिस इचनेस, और व्हाई डज दिस रियली हैपन, इचिंग ऑन योर बेली एरिया? आई पर्सनली फेल्ट लाइक मेरी पूरी बॉडी में इचिंग होता था मुझे, एंड इट इज़ ओनली फॉर सम पॉइंट ऑफ अ टाइम. इट इज़ नॉट लाइक नेसेसरी एस्केलेटेड in the throughout entire the pregnancy. throughout the pregnancy, but for some point of a time you feel, especially in third trimester, your entire body is like I agree, and that happened with me as well. And it can also so I'll tell you the various reasons that it can happen because of. Firstly, जैसे मैंने आपको बताया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से आपकी स्किन में सेंसिटिविटी एंड इचिंग हो सकती है. बट दैट इज़ नॉट द मेजर कॉज. इट कैन हैपन ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ कंडीशन known as pruritus and plaques associated with pregnancy. And इस केस के अंदर आपको इंश्योर करना होता है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, एंड इफ़ इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू यू, देन देर आर सर्टन मेडिकेशंस दैट you'll have to take, some antihistamines you'll have to take, some mild steroid creams or lactocalamine lotions you'll have to apply on your body to decrease that itching. Now this can also happen because of a reason called intrahepatic cholestasis during pregnancy. एंड इसके अंदर क्या होता है, आपका जो बाइल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है. ओके, जब ये बाइल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दिस कैन लीड टू significant amount of irritation on your belly, on your arms, and it also kind of increases while you're not doing anything. So जब आप सो रहे होते हैं, जब आपका माइंड ऑक्यूपाइड नहीं होता, तो आपको और भी ज़्यादा इचिंग होती है. तो what that leads to is कि आप रात भर सो नहीं पाते, और उसकी वजह से आपको, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा खुजली हो रही होती है, तो इस केस के अंदर you have to consult your gynecologist to maintain those bile levels. And उसके लिए वो कुछ दवाइयाँ देते हैं ताकि आपके बाइल लेवल्स कंट्रोल में रहें, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन बाइल लेवल आपको इचिंग ना हो. सो डज दिस ऑयल्स एंड मॉइस्चराइजर हेल्प कंट्रोलिंग दिस बाइल लेवल्स और नो? सो ऑयल्स एंड मॉइस्चराइजर्स आपके बाइल लेवल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, बट जो एक बेसिक इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपको जो इचिंग हो रही है उसको कंट्रोल डेफिनेटली करते हैं, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन को सूद करते हैं, बट इट कैन नॉट कंट्रोल द बाइल लेवल. तो कुछ कंसर्न्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा दवाइयाँ खानी ही पड़ेंगी टू प्रिवेंट दैट इचिंग. बट बेसिक लेवल पे अगर सारी मदर्स, अगर माइल्ड इचिंग हो रही है, दैट्स वेरी नॉर्मल. जस्ट इंश्योर टू अप्लाई मॉइस्चराइजर्स एंड ऑयल्स विच विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द इचिंग. And if it is a severe itching, as you mentioned, does these medication affect the baby? No, they don't. So there are, pregnancy safe medications which will be prescribed to you, which will help in controlling these levels also and not cause any harm to your baby. Okay, so
whenever we go to mall, हम प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मॉल जाते हैं तो वी आस्क द सिक्योरिटी चेक women not to use that particular scanner on the belly. Why we ask them to do not to do this? So there are radiations which are emitted from all these scanners, and that is why it is recommended कि कोई भी mother जब कोई X-ray हो रहा है वहाँ ना जाएं, and कोई भी CT scan हो रहा है. So all these harmful radiations must be avoided to ensure, during the for the well-being of the baby. Yes, yes. उससे कोई so in radiation से बच्चों को फर्क पड़ता है womb के अंदर भी? हाँ, अगर ज़्यादा टाइम तक एक्सपोजर हो तो फ़र्क पड़ सकता है, एंड ज़्यादा क्वांटिटी में हो तभी एक्सरे के लिए हम यूजुअली रेकमेंड नहीं करते. ओके, सो आप किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरे या ऑल दिस रेडिएशन विल नेवर आप सजेस्ट नहीं करते? येस, आइडली, बट अब जैसे कोई चेकिंग हो रही है कहीं पे और वो 1 सेकेंड के लिए अगर आपका डिटेक्टर यूज़ भी करते हैं तो आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट a baby's well-being to that extent, but definitely जो radiations हम expose करते हैं बच्चे को during an investigation, that should be limited. Only and only when it is very much required should be exposed to, otherwise that is limited. Okay. डॉक्टर अनुप्रिया, हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें ऐसी एनकाउंटर करी हैं, लाइक वी हैव सीन सो मेनी वीमेन नॉट यूजिंग केमिकल प्रोडक्ट्स व्हाइल दे आर प्रेग्नेंट. दे स्विच टू प्रोडक्ट्स विच आर पेप्टाइड फ्री, कोलेजन फ्री, all these chemical ingredients free products. Is this a myth, or this is it's a nice thing to do when you're pregnant? So when you're pregnant, there are only a few ingredients which you must avoid. The most important is retinoid. Retinoid should be completely avoided, whether it is a topical cream or it is orally. Orally तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, and retinoid creams भी हम avoid करते हैं किसी भी pregnant female को use करने के लिए. Now whether we should stop using any other ingredient? No. Topical ingredients में चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे एजिलिक एसिड हो, आर्ब्यूटिन हो, लो लेवल ऑफ कोजिक एसिड हो, all these are very safe to use during pregnancy. Peptides अगर आप फेस पे लगा रहे हो, that is safe during pregnancy, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप कोलाजन क्रीम्स वैसे इतनी कुछ इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन अगर आप कोलाजन क्रीम फेस पे लगा रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने में. तो वही प्रॉब्लम है आजकल लोगों को लगता है कि हम कोई भी केमिकल अपने फेस पे यूज़ ना करें, दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द बेबी, बट देर आर सर्टेन इंग्रेडिएंट्स विच यू शुड नॉट यूज़ एंड विच शुड कम्प्लीटली अवॉइड, एंड दैट इज़ डेफिनेटली रेटिनॉइड्स. During pregnancy, do you also advise not to use these salon services like keratin, Botox, because these services are full of formaldehydes and harmful harsh chemicals? So see, I would recommend कि अगर कोई pregnant women इनके लिए जा रही है, please ensure to wear a double mask. But ideally, any pregnant woman should not go for hair Botox or keratin treatments, because definitely the exposure to chemicals is very, very high, and we never know that how it is going to impact the baby. So it is better to stay away. Whether you should go for hair coloring, well, yes, you can go for hair coloring, but ensure to wear double masks while you're, because इनसे जो भी fumes निकलती हैं जब आप inhale कर रहे हो, so वो आपको अब जितना चाहें आप अवॉइड करें तो बेटर है. लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आप प्रेगनेंसी के टाइम पे हेयर कलर बिल्कुल नहीं करा सकते. जस्ट इंश्योर टू टेक ऑल प्रिकॉशंस दैट आर नेसेसरी. नाउ देर आर वेरियस इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स ऑल्सो विच शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नाउ दे आर डेफिनेटली डीपर पील्स. कुछ पील्स होते हैं जो कि डीपर लेवल ऑफ स्किन पे जाता है, विच कैन अल्टीमेटली एंटर द सर्कुलेशन, सो दोज आर डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड. एनी लेजर ट्रीटमेंट, वेदर इट इज़ लेजर हेयर रिडक्शन, फ्रैक्शनल CO2 or intense pulse light or Q-switch India, all these lasers are not recommended during pregnancy, should not do it. Now, intravenous glutathione sessions or Botox and fillers should also not be done during pregnancy. Dr. Anupriya, I'm moving towards again for child and babies. Sunscreen कितना important होता है babies के लिए? So, any child below the 6 months of age should not apply sunscreen. We should only use physical barriers like a hat or full clothing before we take the child outside. Now, 6 महीने के बाद हम फिजिकल सनस्क्रीन लगा सकते हैं बच्चों को, लेकिन इंश्योर करना है कि हम सिर्फ फिजिकल सनस्क्रीन लगाएं. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन इन द मार्केट दीज डेज, फिजिकल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन. फिजिकल सनस्क्रीन के अंदर जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है जो कि आपके रेज को रिफ्लेक्ट कर देती हैं. लेकिन केमिकल सनस्क्रीन्स क्या करती हैं, आपके रेज को
एब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में डेवलप कन्वर्ट कर देती हैं. हमें केमिकल सनस्क्रीन्स बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए बच्चों में, एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 5, एंड from 6 months to 5 years of age we should only use physical or barrier sunscreens. and जैसे ही ये आप अप्लाई करते हैं ये डेफिनेटली आपके हार्मफुल यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है. सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि बच्चों को हमें सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए. 6 महीने से ऊपर बच्चों को हमें डेफिनेटली लगानी चाहिए. इंडिया में क्या है, बिकॉज हमारी जो स्किन टाइप है थोड़ी डार्कर स्किन टोन है एज कम्पेयर टू पीपल इन द वेस्ट. दैट इज़ वाई हमारे जो मेलानोसाइट्स या पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू आवर स्किन from any kind of skin cancers. And that is why people in the West, they make sure of applying good amount of sunscreen because उनके स्किन में मेलानोसाइट या प्रोटेक्टिव सेल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से देयर स्किन कैन गेट मोर प्रोन टू कैंसर्स आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू द यूवी रेज. So it is a mandate for them to apply. It is also very good for us to apply also because आजकल because of the depletion of the ozone layer, the harmful UV rays are more in abundance as compared to before. The UV index of India is also raised. It increased. Yes, it has increased significantly. So it is important to apply sunscreen. If not applying sunscreen, please ensure to use a hat, full clothing on your child to prevent any damage. So sunscreens are good for babies. Yes. However, After 6 months of age. After 6 months of age, it is good. Yes. हम सनस्क्रीन बच्चों के लगा रहे हैं एंड हम नहीं भी लगा रहे हैं, बट स्टिल आई हैव सीन कपल ऑफ पेरेंट्स एंड I've seen a lot of parents, not couple of parents, they use their own, adult creams on baby's face. They use their own talcum powder on babies. बच्चे के लिए corn separately पूरा toiletries खरीदे. They are using same oil on the babies itself. And I'm talking about babies. Do you recommend this? Being a doctor, do you recommend using adult products to babies? So now देखिए, जब बच्चा 1 महीने से नीचे का होता है उनको न्यूनेट कहते हैं, जब बच्चा 1 साल से कम का होता है उनको इन्फेंट कहते हैं. इन्फेंट्स या न्यूनेट्स में इट इज़ बेटर टू यूज़ ओनली बेबी प्रोडक्ट्स बिकॉज द बेबीज़ स्किन इज़ एक्सट्रीमली सेंसिटिव. एंड या तो आप बिल्कुल ही सेंसिटिव स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करें या बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ करें. सो आजकल जो बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं उनके अंदर सेंसिटिव स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर भी एडल्ट एंड किड्स मेंशन्ड होता है दैट इट कैन बी यूज्ड. सो it is very important to be gentle on your child's skin, and that is why it is better if you use baby products for your children at least below 1 year of age. That's very important. And you would never recommend using all these adult creams on babies? So देखिए, अब adult creams के अंदर बहुत vary करता है. Now there are certain creams which contain ceramides, which contain moisturizing ingredients, which can be used in children. There are various physical sunscreens which are also safe to use in pregnant women, can also be used in children. Okay. So totally depends upon the ingredient list that आप कौन से ingredients use कर रहे हो. मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे adult products बुरे हैं बच्चों के लिए. कुछ adult products हैं जिनके ingredient list इतनी अच्छी है जो कि sensitive skin वाले adults use करते हैं. वो similar products बच्चे भी use कर सकते हैं. डॉक्टर अनुप्रिया, हम स्किन इतना ज़्यादा डीपली डिस्कस कर रहे हैं फॉर बेबीज़ एंड फॉर वुमेन. देयर आर फ्यू ब्रांड्स इन द मार्केट स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. दे क्लेम कि वो प्रोडक्ट यूज़ करने से उनके स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे, बट बीइंग अ वुमेन एंड बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड अ मॉम, कहीं ना कहीं ये क्लेम्स मुझे अनवर्दी लगते हैं. लाइक आई फील लाइक द क्लेम्स आर नॉट रियली ट्रुथ in terms of deliverables. Like they are committing कि आप ये oil use करो तो आपके stretch marks नहीं पड़ेंगे. Do you believe in like these claims are genuine enough or not? See, now stretch marks develop होना, it is associated with multiple factors. First तो ये है genetic. अगर आपकी mother को stretch marks develop हुए थे during pregnancy, your chances of developing stretch marks is higher because you have a tendency in your family to develop stretch marks. Second, multiple pregnancies. अगर कोई एक female है जिसको twin pregnancy या triplet pregnancy हुई है, definitely the expansion of the abdomen will be way higher than a singleton pregnancy. The chances of developing stretch marks is higher in that case.
नाउ क्या हमें क्रीम्स और ऑयल्स लगाने चाहिए और क्या इनके क्लेम्स करेक्ट हैं? डेफिनेटली हमें क्रीम्स और ऑयल्स लगाने चाहिए टू प्रिवेंट to prevent breakdown of elastin and collagen while our stomach and while our belly is expanding. उससे डेफिनेटली एक सपोर्ट मिलता है एंड इसको लगाने से आपकी इचिंग भी कम होती है एंड चांसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेच मार्क्स बिकम्स लेसर. ओके, एंड कब इसको लगाना शुरू करना चाहिए? 3 months ऑफ प्रेगनेंसी के बाद से ही लगाना शुरू करें ताकि आप अपना इलास्टिन और कोलाजन उधर डेवलप करना शुरू कर दें. नाउ क्या ये क्लेम्स बिल्कुल करेक्ट हैं कि ये कोई भी स्ट्रेच मार्क डेवलप नहीं कराएगी? द चांसेस आर कि हाँ, ये 20 to 30% आपके स्ट्रेच मार्क्स कम कर सकती है, बट 100% नो, दैट इज़ टू मच ऑफ अ क्लेम. So, as a layman, I do not believe कि 100% करता है. 100% कभी भी कोई भी क्रीम आपकी किसी भी कंडीशन को ट्रीट नहीं कर सकती बिकॉज देर आर मल्टीपल फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट. इट कैन टेक केयर ऑफ वन फैक्टर बट इट कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ जेनेटिक फैक्टर, और इट कैन नॉट टेक केयर कि अच्छा आपकी अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं आपको नई स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होंगे, या आपका बहुत रैपिड वेट गेन हुआ है तो आपको डेफिनेटली स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो सकते हैं. इवन वी हैव सीन स्ट्रेच मार्क्स जब आप वेट लॉस भी करते हो तो भी आपके जो एक्सेस एरियाज होते हैं जो कि रिड्यूस डाउन हो जाती हैं, मसल्स वगैरह, वहाँ पे भी आपके स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं. द रीजन इज कि आपने वहाँ पे एकदम से वेट गेन किया, आपका इलास्टिन कोलाजन एकदम से स्ट्रेच हुआ और उसके बाद एकदम से वापस आ गया. सो जस्ट इमेजिन लाइक अ बलून स्ट्रेचिंग एंड डिफ्लेटिंग बैक, यू नो. सो द इलास्टिन लेवल completely gets crinkled back again and that's why you get the looseness of skin and that's why the stretch marks are developed. आपके पास कोई एक्सक्लूसिव होम रेमेडी है कि हम अपने स्ट्रेच मार्क्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोकोनट ऑयल इज ग्रेट, यू कैन इवन मिक्स विटामिन ई विद कोकोनट ऑयल एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग द इन्फ्लेमेशन एंड जनरेटिंग सेल्स. what you can also do is you can mix coconut oil with sugar, so उसका एक sugar scrub बन जाता है. So that also helps in generating, increasing cell turnover because आप उसको scrub कर रहे हो अपने abdomen पे, but don't over scrub. Just आप new cells formation में help कर रहे हो because आप sugar scrub से exfoliate कर रहे हो अपने skin को. And aloe vera gel can also be used, especially when you have itching over there, because that also sort of decreases the inflammation and calms and soothes the skin. Yeah. Perfume क्यों नहीं use करना चाहिए when you are pregnant? See, perfume का मैं ये नहीं बोलूँगी कि it is completely contraindicated in pregnancy, but some women can be more sensitive especially when estrogen progesterone increases, your skin sensitivity increases. So your skin can be a little more sensitive to the perfume ingredients. So because आपकी skin की sensitivity बढ़ जाती है, परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स, जो परफ्यूम एक इंग्रेडिएंट होता है परफ्यूम के अंदर और परफ्यूम स्किन के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, देयर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी ऑफ योर स्किन बिकम्स हायर. बट क्या ये हर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर सेंसिटिविटी इंक्रीज कर ही देगा? नो, दैट इज़ नॉट नेसेसरी. बट अगर आपको उस वजह से सेंसिटिविटी इंक्रीज दिख रही है तो आप यूज़ करना बंद कर दीजिए. कुछ लोगों का मानना भी होता है, अगेन इट्स अ मिथ और फैक्ट, आई डोंट नो, बट दे टेंड टू फील दैट इफ यू आर गोइंग टू यूज परफ्यूम्स ऑन अ बॉडी इट विल समहाउ और अदर इम्पैक्ट the baby inside a womb. And well, you are using perfume in a very small quantity unless and until you are taking a lot of quantity and spreading it on your skin. Bathing with perfume. Yes, it's in very little quantity. So I don't think so that you have to be so restrictive during your pregnancy that you stop living. Yeah, so you mean to say, like, use a small quantity. Small quantity, use it on your clothes, that's all. Yeah, perfectly understood. I think it's a myth altogether. I mean, if you're using a very tiny amount of a perfume on your neck or on your hands, yes, it's like you're maintaining yourself. Exactly. Dr. Anupriya, if you can tell our users in a very quick manner do's and don't when it comes to skin during pregnancy, what you can advise to our... देखिए, do's सबसे पहले ये हैं कि अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर मेंटेन करें. डोंट स्टॉप यूजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स. Make sure that you take out 5 minutes from your day to ensure that you cleanse your skin properly, you apply a serum according to your skin condition. That is, अगर आपको कोई pigmentation है तो pregnancy safe ingredients available हैं. That is very, very important for everyone to remember that there are so many pregnancy safe ingredients. Make sure to apply your moisturizer and sunscreen. So make sure to follow a regular skincare routine. Second, make sure to take care of your hygiene.
सो हाइजीन के अंदर आपके बॉडी में क्योंकि इतने चेंजेस हो रहे हैं, आपके ब्रेस्ट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे जब आपकी इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट या इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन हो रहा है, आपके थाइज़ के बीच में रबिंग फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो सकती है, एरिया बिलो योर ब्रेस्ट वहाँ पे स्वेट अक्यूमुलेट हो सकता है. सो इंश्योर करें कि उन एरियाज़ को क्लीन रखें आप. वहाँ पे अगर आपको जिंक क्रीम्स अप्लाई करनी है इन केस आपको कोई रैशेस डेवलप हो रहे हैं, वो आप यूज़ करें. And just ensure to maintain the hygiene of your body. So these are the main do's for skin care of your body and of your face. Don'ts are that आप ensure करें कि कोई भी रेटिनॉइड क्रीम अपने फेस पे ना यूज़ करें. That is very important. Try to switch to physical sunscreens versus chemical sunscreens during pregnancy. And just डोंट स्ट्रेस टू मच दैट आप अगर स्किन केयर करेंगे या आप स्किन इंग्रेडिएंट्स या सेल्फ केयर करेंगे तो इट इज़ बैड. इट इज़ नॉट बैड. अल्टीमेटली अ हैप्पी मदर is very important for a happy child so that you can pass positive vibes to your child. I really like this. Happy mother is very important for a happy child. That's true. I'm a miserable mother. And my baby is also going to be miserable. So moving on, Dr. Anupriya, आपने जैसे एक स्किन केयर के बारे में बोला कि एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन हाइजीन होना चाहिए. I want to understand from you these color cosmetic products like concealer, foundation, your contours. These products can also be used during pregnancy? They have always been used. They can still be used. आज तक there is not a definitive study कि use of cosmetics से कोई harm पहुँचाए बच्चों को. So I don't think that there has been any concrete evidence that this can lead to any problem in a child. So people have been using it and people can use it. I mean, there is no a scientific logic behind this. No. There is no concrete. So see, या तो बहुत स्टडीज़ हुई होती है इस पे. हमें डॉक्टर्स को पता कैसे चलता है जब कोई साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश होती है स्टडी कि हाँ हमने 100 लोगों पे ये टेस्ट किया कि अगर कंसीलर्स और कॉस्मेटिक्स अप्लाई करने से उनके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए. तो आज तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है कि हमने अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिपस्टिक्स यूज़ करी हैं या हमने मेकअप यूज़ किया है उससे कोई हार्म हुआ है बच्चों में. We were talking about skin discoloration. So during pregnancy, most women face discoloration on their face. They start seeing, major pigmentation on their cheeks, on their forehead area. Why does this really happen? So increase of estrogen and progesterone leads to a condition known as cloasma or melasma in pregnancy. एंड ये एक बटरफ्लाई टाइप ऑफ पिगमेंटेशन दिखती है कि हमारे चीक्स पे हो जाती है, हमारे नोज़ पे भी हो सकती है. नाउ दिस कैन हैपन ऐसा ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में हो. मेलाज्मा कैन हैपन ड्यू टू इंक्रीज सन एक्सपोजर ऑल्सो. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ये होती है इट कैन ऑल्सो बी बिकॉज आपके फैमिली में हेरिडिटरी है कि आपके मदर को या ग्रैंड मदर को या नानी साइड किसी को भी ये पिगमेंटेशन होने के चांसेस थे एंड इसकी वजह से आपको भी ये पिगमेंटेशन हुई है. नाउ डज इट हैपन इन एवरी वुमन? नो, इट डज नॉट हैपन इन एवरी वुमन. सो इट बेसिकली हैपन्स इन विमेन जिनको फैमिली हिस्ट्री है और जिनकी टेंडेंसी है डेवलप होने की पिगमेंटेशन की बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ हॉर्मोन्स. ओके, हाउ कैन पेरेंट्स आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन एक्जिमा, स्किन एलर्जिक रिएक्शंस एंड डायपर रैशेस? सो देखिए, एक्जिमा जो जैसे मैंने आपको कहा था इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड स्किन बैरियर. तो इसका जो अपीयरेंस होता है आप समझ लीजिए कि कोई खरोंच जैसे पड़ जाती है, वाइटिश स्केल्स डेवलप हो जाते हैं एंड यूजुअली ये आपके फेस, आर्म्स, हैंड्स या बैक ऑफ द नी पे होता है. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया टू डेवलप. हाउएवर एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं जैसे मैंने आपको कहा था हाइव्स या चिकत्ते से बन जाते हैं. सो जैसे कोई मच्छर काटा होता है वैसे टाइप के रेज्ड लीजन्स रेडिश से विद इरेगुलर बॉर्डर्स बन जाते हैं एंड दिस कैन हैपन एनीवेयर ऑन द बॉडी. सो एलर्जिक रिएक्शन कहीं पे भी बदन पे हो सकती है और ये सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र से नहीं जाती. इसके लिए हमें कुछ एंटीहिस्टामिन्स ओरली भी देनी पड़ती हैं. सो दिस इज़ हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. एंड डाइपर रैश बहुत ही लोकलाइज्ड होता है. हमें पता है कि ये सिर्फ डाइपर के एरिया के अंदर ही है. इसमें रेडिशनेस भी हो जाती है स्किन में, यहाँ पे छोटे छोटे दाने भी हो सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी बार सैटेलाइट लीजन्स या लाल रंग के स्पॉट्स हो जाते हैं अगर यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाती है. सो रेडनेस अलॉन्ग विथ सम red spots also can happen in a diaper rash. Okay.
डॉक्टर अनुप्रिया, बच्चों को जब हम मॉस्किटो बाइट से बचाते हैं, हम चाहते हैं कि वो सेफ रहें, सो ड्यूरिंग देयर नाइट रूटीन वी ट्राई टू यूज सम मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रेज एंड क्रीम्स. Being a dermatologist, do you recommend using these mosquito repellent creams and sprays? बेस्ट वुड बी टू यूज़ अ बैरियर. मतलब आप मस्कीटो नेट्स यूज़ करें. बच्चों के लिए स्पेशली मस्कीटो बेड्स आते हैं जो कि उनको बचा के रखते हैं. सो बेस्ट वुड बी दैट. देन देर आर ऑल्सो मस्कीटो पैचेस जो कि आप मस्कीटो पैचेस कपड़ों पे लगा सकते हैं. देर आर ऑल्सो मस्कीटो रोल ऑन्स जो कि कपड़े पे लगाया जाता है. तो रादर देन अप्लाइंग दीज क्रीम्स ऑन वेरी सेंसिटिव स्किन लाइक एन इन्फेंट, आप बेटर है कि मस्कीटो रोल ऑन्स ऑन द फैब्रिक यूज़ करें ताकि मस्कीटो के बाइट से आप उनको बचा भी सकें और उनकी स्किन को भी कोई हार्म ना पहुंचाएं. Dr. Anupriya, it's so good to have you here, and thank you so much for sharing this insightful conversation related to mom and baby skincare. Thank you. You have shared your invaluable experience with us. We are in awe and we really loved it. We would love to host you once again, and it was an amazing, amazing conversation. Thank you so much, and I really love to be here because this was the first time that I really talked about mother and child skincare health. So it is very nice for me also to ensure that I pass on this knowledge to everybody, and all the viewers, they gain something out of it and they are able to change something in their routine while they are taking care of their little one. So thank you for having me. You're most welcome, and your knowledge is like, it suffice everything, whatever mother, and not just mother, the entire parent community needs to know. I think you have explained it beautifully. Thank you so much. Thank you.